there are certain thoughts, certain cognitions, certain beliefs which can be roughly termed as automated beliefs. ठीक है ना? I won't go into the depth. I'll just tell you some of them जो कि फौरन आते हैं ज़हन में. फॉर्च्यून टेलिंग एक कॉग्निशन है, एक बिलीफ. फॉर्च्यून टेलिंग ये है कि जी मेरा इंटरव्यू है और मैं इस इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाऊंगा. फ्यूचर की कॉग्निशन नेगेटिव. पर्सनलाइजिंग द रिलेशनशिप वाज बैड, I am to be blamed, I did everything wrong. I was counseling somebody the other day. The father came with the son and he said मेरा कसूर, मैंने इसको तबाह कर दिया, मेरा बेट, मैंने सब कुछ मैंने गलत किया. ठीक है? पर्सनलाइजिंग अपने ऊपर ब्लेम. कैटास्ट्रोफाइजिंग, I am going to the party, okay, my dress is not that good, everybody's gonna look at me and everybody's gonna hate me, okay. And how to fix it? One thing is, by the way, what's your name? Nobody's that important. People don't even think about you. They don't even notice when you are thinking everybody is noticing me. और तबाही होगी, मैं social outcast होगी. Because हर बंदा अपने cognitive cycle में है, ठीक है? You people don't think about you as much as you would like to believe. Not that important, I'm sorry to say. Voice. True that, sir. Catastrophizing. Black and white thinking. Okay, black and white thinking love सुना? Yes, sir. No grey room, either good or bad. Everything I did in life was a failure. अगर आप इससे पूछें, तो आपको पता लगेगा कि ये इतनी black. Because you sometimes in some of the things you were a failure, in some of the things you were successful, but आपने एक sweep से एक black and white thinking, ठीक है? इसका एक और thinking है, automated thinking, जिसको कहते हैं discounting the positives, okay? कि there are positive things that happened as well, but you discount them. Even negative affectivity में, okay, एग्जाम आ रहा है, टेंशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, एंजाइटी. जब आ गया एग्जाम, ओके, आपने दे दिया और यू स्कोर्ड गुड, बट एग्जाम वाज इजी. ये तो होना ही था. डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव. लेबलिंग, आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर. ठीक है, ये लेबलिंग, ये भी एक ऑटोमेटेड थॉट है जी. पर्सनलाइजेशन लेबलिंग होती है अपनी पर्सनालिटी को. आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर, ठीक है ना. पर्सनलाइजेशन होती है रिलेशनशिप या इंटरेक्शंस में कि इस या प्रोजेक्ट्स में कि ये जो प्रोजेक्ट फेल हुआ इसमें कसूर मेरा है. लेबलिंग, अगर जब हम पर्सनालिटी कवर करेंगे, पर्सनालिटी में पूरा एक लेबल दे देता है कि पर्सनालिटी में लेमैन पर्सनालिटी को कैसे डील करता है, बाय यूजिंग लेबल्स. ही इज वार्म, ही इज कोल्ड, ही इज इंट्रोवर्ट, ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज शाय. ठीक है, सो ये लेबलिंग नेगेटिव ऑटोमेटेड लेबलिंग होती है. आई एम अ लूजर, I'm a failure, I'm a flop. Sometimes people are, by the way. Anyhow, मैं ये समझ आ गई जी, ये तो होगी. और negative, because the question was how to fix it. This is beyond the scope, but मैं आपको quickly सिर्फ इसमें से दे रहा हूँ. First is ask the evidence. If I am the counselor, मैं आपको counsel कर रहा हूँ तो मैं आपसे evidence पूछूंगा, ठीक है? Evidence of your cognitions, of your beliefs. If you say I'm a failure, I say okay, give me the evidence. In these areas you were successful, but what about you were a failure, but what about in these areas? Okay. So आप evidence, factual evidence से करते हैं. Remember cognitions, ये लिख लें. Cognitions are cues about realities. They're not absolute reality. That is the first thing. And the second thing is, जो कि हम थोड़ा अब जा रहे हैं सैम हैरिस और illusion of free will की तरफ. The second thing is that we as organisms have the ability. We as the organisms have the ability to become an independent observers of our own cognition. मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, we are not authors of our own. जो हम ये जो self है ना, एक self, ये सेल्फ मेरी आंखों के पीछे मेरी कोई सेल्फ नहीं है. मेरी ये जो भी है कॉग्निशन में वो एक चीज़ है
जिसमें एक एबिलिटी है, सुने ये बात गौर से सुने फिर लिख लेना, जिसमें एबिलिटी है कि जी मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरी ही साइकी में से एक चीज मेरी सोचों को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर सकती है। मेरी बात, आप कुछ सोचें, ठीक है ना, आपके दिमाग में कोई बात है, आपको क्या नाम है, और मोहीर ही की साइकी का कोई पार्ट मोहीर की थॉट को ऑब्जर्व कर सकता है। दिस इज व्हाट सूफीज और स्पिरिचुअलिस्ट एट देयर एक्सट्रीम दैट दे, जो बुद्धा ने किया कि आप अपनी सेल्फ, जिसको कहते हैं जी आपकी ईगो बैरियर तोड़ना, अपनी ईगो, आप अपनी ही थॉट्स को, बट वी आर ऑल केपेबल ऑफ इट, ठीक है। अब Sir, I didn't understand this one. आप अपनी थॉट्स को खुद एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कर सकते हैं। ये बहुत डीप टॉपिक है कि व्हाट इज सेल्फ, ठीक है ना, व्हाट इज, यू हैव नो सेल्फ, so to speak. There is some psychic phenomenon going on, there are thoughts going on, and then there is something else that has the ability to become, and आप खुद एक अपनी कॉपी बन के बाहर खड़े होके अपनी थॉट्स को देख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं कि जी मैं ये सोच रही हूँ। So that requires a lot of practice, right? नहीं, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये समझ आ गई कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप ये कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप करते हैं डिस्प्यूटिंग योर कॉग्निशन। आप ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू डिस्प्यूट देम। यू कैन डू लॉजिकल डिस्प्यूटिंग, यू कैन डू परसुएसिव डिस्प्यूटिंग, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब मेरी बात सुने, अब मैं कल जो है जा रहा था तो क्या नहीं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, पीसी के सामने रूट लगा हुआ, ठीक है, और मैंने बहुत सारे काम करने थे और मैं आई वाज सिक टू माय स्टमक, आई वांटेड टू रीच होम। तब चढ़ गई कॉग्निशन कि ये क्या बकवास है, इन लोगों ने क्या, उससे क्या मेरा अफेक्टिविटी, मेरा बिहेवियर। सुबह भी यही हुआ है, उस तरफ उस रोड पे कोई टैंकर फटा है, ठीक है, सुबह भी मैं दोनों। अच्छा, अब मैंने क्या किया जब पीसी के सामने, ठीक है, मैंने अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि मैं एंग्री क्यों हो रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, 2-3 सिगरेट फौरन ही गाड़ी में क्यों लगा लिए। लेट्स लॉजिकली डिस्प्यूट इट, लॉजिकली डिस्प्यूट माई कॉग्निशन एंड इफेक्ट्स। क्या लॉजिकल डिस्प्यूटिंग ये होती है, क्या ऐसा करने से रूट खुल जाएगा, क्या ऐसा करने से कॉन्फ्रेंस मुअत्तल हो जाएगी? वो तो तभी होनी है जब होनी है, और घर मैंने तभी पहुंचना है, ठीक है। एक और लॉजिकल डिस्प्यूटिंग है अपनी कॉग्निशन को बाहर से ऑब्जर्व करने का, कि 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, 20 मिनट, आधा घंटा, शाम तक तो घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ये लॉजिकल डिस्प्यूटिंग है। परसुएसिव डिस्प्यूटिंग होती है कि आप अपने आप को परसुएट करते हैं, व्हाट इज माय गोल हियर, ओके, इज माय गोल टू बी हैप्पी और टू बी एंग्री, इज माय गोल टू बी कंस्ट्रक्टिव और नॉट, ओके। अगर मेरा गोल कंस्ट्रक्टिव है तो ओके, इस टाइम मैं क्या कंस्ट्रक्टिवली कर सकता हूँ, ओके, एक मीटिंग आ रही है, लेट्स थिंक अबाउट इट, उसके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करता हूँ, ठीक है, उसके बारे में डैशबोर्ड खोला, कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ। So these are all the strategies that you can do, ठीक है, to challenge your negative effects and cognitions and beliefs, ठीक है ना। और इसमें फिर एक पूरी tyranny of beliefs है। सर, ये सब कुछ तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं, मतलब ये इट्स नॉट समथिंग कि हम पढ़ेंगे तो करेंगे। Sir, we don't do it. मतलब ऑब्जर्विंग है, You need to do it. You need to do it. देखें जी, आप खुद को समझा, आप बाथरूम में बैठ के सबसे बेस्ट पास टाइम यही होता है। अगर आपकी बात ठीक होती ना तो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, शेल शॉक, ये सब खत्म हो चुका होता, ठीक है। इसी जगह पे, इसी रूट पे आई सॉ पीपल। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, नेगेटिव अफेक्टिविटी में अब फ्रॉइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट, बीवी से लड़ रहा है, बच्चे को गालियां दे रहा है, गुस्सा कहीं और है, डिस्प्लेसमेंट सुने लफ्ज़, ठीक है। ये कोई समझा नहीं, मतलब कुछ एक और है वो बार बार यूं कर रहा है, कोई और है वो मतलब सर खुजा रहा है, कोई और है वो सोची जा रहा है, अपनी कॉग्निशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो क्या रहा है, बीपी रेज होता जा रहा है, शाम को डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रही है, ठीक है। सो मैंने जब कहा कि ये CBT है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। इट्स नॉट एज सिंपल। मैंने पहले दिन कहा है ये, मेनी थिंग्स यू थिंक, ट्राई इट, ट्राई इट। मैं आज आपको ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है,
अब ये एक सिनेरियो हो गया जिससे आपके ज़हन में कॉग्निशन है। अब अपने आप को आप समझाएं, ठीक है? I mean it. No. Sir, like seriously? Sir, I have another question. कॉग्निशन प्रोसीड्स बिहेवियर कॉग्निटिव स्कूल के इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल है जो परसेप्शन है, जो कि आगे हम कवर करेंगे। पर ये स्कूल समझ आ गया? ओके। द सेकंड स्कूल इज द behaviorist school, okay, who say that you are a product of your ecology